It's warm full welcome once again in my cricket chats. So it's a delighted this Bhakti weekend is going on, and we are discussing at my cricket chats ICC Champions Trophy past prominent edition, and now in this series we are taking 2002 ICC Champions Trophy, which has been held in Sri Lanka from 12th September to 30 September. Actually, two times the final has been played, but it was incomplete. Uh, it was a second edition of the ICC Champions Trophy, and the very first had in Nairobi, and New Zealand had won. India were runner up, and in this Champions Trophy again India reached into the final. And what happened in the final I will tell you later, but starting from the uh, first match, actually it was round robin matches, means the same pattern from Edison first. And you can say, I think in this venue 16 matches has played in this edition, uh, and 12 participants, and the prize money $1 million. Highest run getters in this tournament, Virender Sehwag 271 and 10 wickets by Muralidharan. So this is the only just second edition, and the Champions Trophy has come in Asia. And it's pool 2, India, Zimbabwe and England were. And then it was the knockouts start from uh, 22nd September, and then it will be semis and final as well. So the first match, India versus Zimbabwe at Colombo, it was the slow tracking uh, pitch, and India batted first, and it was the century by Mohammad Kaif, and 111 Nelson mark not out, 112 balls, and it was 286 88 runs, loss of 6 wicket India made. And it was really fighting total on these days. And Zimbabwe replied very strongly, and their opening batsman Andy Flower and their brother Grant Flower 33 and 145 by Andy Flower. And one stage Zimbabwe were looking so easy to go to run chase over this 288, but thanks to our bowler, and India won just 14 runs. Heath Strick, Douglas Hodo, there were two prominent bowler from Zimbabwe. 4 wickets taken in this match, Douglas Hondo, and Virender Sehwag has also made 48. Dravid, it was very crucial knock by in middle 71 runs. So भारत ने जो पहला मैच जिम्बाब्वे से जीत लिया, और इसके बाद सीधे भारत पहुंच गया नॉकआउट स्टेज में, जहां भारत का मुकाबला था इंग्लैंड से। एक्चुअली ये दूसरा मैच था पूल 2 में, और इंग्लैंड से मुझे अभी भी याद आता है कि वह मैच मैंने देखा था। एंड भारत को चेस करना था, 270 के करीब टारगेट था, पूरे पूरे 270 रन का, 269 किए थे इंग्लैंड ने। और सहवाग के आतिशी शतक और गांगुली के भी शतक से भारत ने यह मैच 8 विकेट से जीता था। और ऐसा लग रहा था कि ये मैच काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो जाएगा, 50 ओवर से पहले, और वैसा ही हुआ। 126 रन वीरेंद्र सहवाग ने 104 बॉलों पर, एंड सौरव वर नॉट आउट ऑन 117। सो इस तरीके से भारत ने इस रन चेस को बहुत आसानी से अचीव किया। और इसके बाद सीधे भारत का मुकाबला था सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में भी मुकाबला भारत का साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम से था, जहां भारत ने एक बार फिर से बैटिंग की, 261, लॉस ऑफ 9 विकेट्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट नॉक अगेन प्लेड बाय वीरेंद्र सहवाग, 59, 49 by Dravid, 16 Tendulkar, and Yuvraj Singh again 62, brilliant in the middle. पोलक, एंटनी एंड डोनाल्ड की ये टिकड़ी, जिसकी बदौलत भारत
ने इनके सामने एक मजबूत टिकड़ी थी, इनके सामने 261 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। उन दिनों 260 270 रन एक मैच विनिंग स्कोर्स होते थे, और आजकल 400 भी बड़े आसानी से चेस हो जाते हैं, क्योंकि आजकल बल्लेबाजों का बोलबाला है। बट उन उन दिनों 270 280 या 230 240 भी बहुत ज़्यादा होते थे, स्पेशली इन सेकंड इनिंग्स में काफ़ी टफ होता था, स्लो पिचेस पे, स्पेशली श्रीलंका में। तो ऐसी कंडीशंस हमेशा रहती थी अंडर द लाइट्स, कि आप अगर पहली टीम पहली पारी में 260 270 बन जाते थे तो काफ़ी आसान नहीं होता था। तो वैसा साउथ अफ्रीका के लिए भी हुआ। 251 रन 6 विकेट पर उन्होंने बनाए, और भारत के 261 रनों के जवाब में एकदम करीब करीब साउथ अफ्रीका पहुंच गया था। और हर्षल गिल जब तक वह क्रीज पर थे तब तक ऐसा लग रहा था कि भारत सेमीफाइनल से ही आउट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए इसके बाद जैक कैलिस 97 रनों पे आउट हुए, और हरभजन सिंह का वो ज़बरदस्त इस पर 10 ओवर 1 मेडल 27 रन और 3 विकेट। ये मैच मैंने लाइव तो नहीं देखा, लेकिन उसकी हाइलाइट्स कई बार देखी, और बहुत फंसा हुआ मैच था। एक युवराज सिंह का कैच मुझे याद आता है राहुल द्रविड़ के ठीक पीछे। राहुल द्रविड़ इस मैच में क्या, इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने ही कीपिंग की थी 2003 वर्ल्ड कप की तरह। एंड इसके बाद भारत था फाइनल में। एंड फाइनल ऐसा था कि भारत और श्रीलंका ने दो दो बार फाइनल खेला, और एक तरीके से थोड़ा सा रूल मुझे समझ में नहीं आया कि जब रिजर्व डे था तो इस फाइनल को दूसरे दिन, पहले दिन से ही, जहाँ पे पहला दिन का बंद हुआ था वहीं से उसको शुरू करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको बता देता हूँ 29 तारीख को फाइनल था, और उसमें श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की थी, 244 बनाए थे। भारत का स्कोर था 14 रन बिना किसी नुकसान के, और वहीं पर बारिश आ गई तो इसको जो शिफ्ट कर दिया गया 30 सितंबर 2002 को। और वहाँ इसके बाद फिर से टॉस हुआ, फिर से श्रीलंका ने बल्लेबाजी शुरू किया। द वेरी फर्स्ट बॉल जहीर खान बोल्ड टू सनत जयसूर्या श्रीलंकन कैप्टन, एंड आई वॉज सो हैप्पी। द इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन, और कॉलेजेस में भी बात हो रही थी कि पहली गेंद पर जहीर खान ने जयसूर्या को आउट किया, लेकिन फिर भी 222 रन श्रीलंका ने उस फाइनल में बनाए। दूसरा मतलब फाइनल एक ही, लेकिन दूसरी बार खेला जा रहा था। इसके बाद फिर से भारत की बल्लेबाजी आनी थी, लेकिन भारत की बल्लेबाजी आई ही नहीं। एक बार फिर से बारिश हो गई, तो श्रीलंका एंड इंडिया, या आप कह सकते हैं दोनों ही विजेता या संयुक्त विजेता, एक नाम दिया गया, एक संयुक्त विजेता थे इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 में। और आप जानते हैं कि श्रीलंका में कभी भी बारिश हो सकती है, एक आइसलैंड कंट्री है। तो भारत के पास मौका था, श्रीलंका के पास मौका था, लेकिन वर्षा ने दोनों को मौका नहीं दिया, और दोनों ही टीमें संयुक्त विजेता हुई इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 में। प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें भी प्रावधान नहीं था, इसमें भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसी को दिया जाए। तो ये ऐसा टूर्नामेंट था, मिनी वर्ल्ड कप आप जिसे कह सकते हैं। पहला एडिशन न्यूजीलैंड ने जहाँ जीता, भारत वहाँ भी फाइनल में था, और एक समय ऐसा लग रहा था भारत वो फाइनल जीत जाएगा, लेकिन केस कैरन्स के शानदार शतक से न्यूजीलैंड वहाँ जीता। यहाँ पर एक बार फिर भारत फाइनल में था, और दो एडिशन में लगातार दो बार फाइनल खेलना भारत की मजबूती को दर्शाता है। In the third edition in England in 2004, what happened? I will come with that edition, but please subscribe and follow my channels as well. So this is the whole story of the ICC Champions Trophy 2002. Thank you so much. Good night to you, and enjoy my channel.